سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین ویڈیوز اور خبروں پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے بھی دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں ماب لنچنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ہندوتوا دہشت گردوں کی دہشت گردی کا سلسلہ اس قدر اس وقت طویل ہوتا جا رہا ہے کہ اب میڈیا کو یہ خبر بھی کوئی خاص خبر نہیں لگتی۔ ویسے بھی ان طرح کی خبروں کو دبا دیا جاتا ہے، بالخصوص جب ماب لنچنگ میں مسلمان مر جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو پوری طرح سے دبا دیا جاتا ہے۔ اس وقت دو خبریں ہیں۔ یہ خبر کو جو آسام سے آئی ہے 2 دن قبل آئی تھی لیکن دبا دی گئی، اور ایک آج کی آ رہی ہے اور اس کی ویڈیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو تو ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو حملہ کرنے کی، لیکن یہ مناظر دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہریانہ کے بابر شاہ پٹودی میں معاملہ پیش آیا۔ مونو مانیسر ایک بجرنگی دہشت گرد ہے۔ یہ شخص ہندوتوا ذہنیت کا حامل، یہ گنڈا، اس سے پہلے بھی اس کا نام آیا ہے مونو کا۔ نمازوں کو جو نوئیڈا میں نماز پڑھتے ہوئے روک کر کے گنڈا گردی کیا کرتا تھا، اور گائے کے نام پر جس نے اس سے پہلے بھی حملہ کیا ہے، اسی کی قیادت میں بجرنگ دل کے 20 سے زائد گنڈوں نے مار پیٹ کی، اور اسی علاقے سے معین خان نامی ایک شخص گزر رہا تھا، اس پر چاقو گھونپ کر کے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک مسلم کالونی پر حملہ کیا گیا پہلے تو، اور حملے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ دونوں گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ اسی درمیان میں معین خان اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس کو روک لیا اور چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ دن دہاڑے اس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے ناظرین گرامی، اور مونو جو اس سے پہلے بھی گنڈا گردی اور دہشت گردی میں نام آیا تھا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد اس کی گرفتاری اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ حملہ کیے ہیں، مسلم کالونی میں ہو یا پھر معین خان کو جو زخمی کیا ہے، ان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کرنے کا جہاں مطالبہ بڑھ رہا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، دوسری جانب آسام میں کیا ہو رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں۔ بچوں کی شادی کے نام پر 3000 سے زیادہ گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ لگاتار غصے میں ہیں۔ اسی درمیان میں نظریہ نامی ایک شخص کا ماب لنچنگ ہو جاتا ہے، پھر یوں کہیں کہ جان بوجھ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیہوہر سنٹوک نامی علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اس پر مویشیوں کو چوری کرنے کا الزام لگا کر کے 5 فروری کو بامن پوکھری نامی علاقے میں مار مار کر کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس قدر اس کو مارا گیا کہ وہ بری طرح زخمی ہوا، اس کے بعد ہاسپٹل لے جانے کی کوشش ہوئی، لیکن اس درمیان میں اس نے دم توڑ دیا۔ اب جن لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے ان کے خلاف معاملہ تو درج ہو گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی کی بی جے پی کی جہاں جہاں سرکاریں ہیں وہاں پر کس طرح الگ الگ بہانوں سے حملے ہو رہے ہیں، اور لگاتار حملے ہو رہے ہیں، لگاتار ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری قیادت بھی خاموش ہے، اور ویسے بھی آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بھارت کو تباہ کن
माहौल में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहा जा सकता है। अब देखिए दलित खातून के साथ क्या हुआ है, मुसलमानों के साथ ये सूरत हाल है, तो कर्नाटक में दलित की एक खातून को किस तरह बांध करके मारा गया है और इसको जो सजा दी गई है, आप वजह जान करके हैरान रह जाएंगे कि एक दलित की गाय, वो अपने आप को जो बड़ा समाज कहते हैं ना, जो हकीकत में बड़ी गंदी ज़हनियत के हामिल ये लोग हैं, ये समाज है, उनके खाली मैदान में चरने के लिए यानी घास कुछ खा लिया था इसकी गाय ने। सिर्फ इस वजह से इस खातून को बांध करके मारा गया है और ये कर्नाटक के कोप्पल जिले में पेश आया हुआ मामला है। जो लैंड था, जिस लैंड में इसकी गाय ने चारा खाया, वो बड़े समाज से ताल्लुक रखता था। दलित की गाय भी दलित बन गई है। नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल और इनकी सोच, इनकी घटिया सोच की इंतहा और कहां तक जा सकती है, इसका आप अंदाजा लगा लें। इसकी तफसीलात में मुझे नहीं जानना। आइए आगे बढ़ते हैं। और गाय से मोहब्बत क्या है, गाय के चरने पर गाय को पालने वाले औरत को तो मार दिया, लेकिन सरकारी फरमान क्या आया है, 14 फरवरी को जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, यानी ये जो सरफिरी, नाजायज़ आशिकी, बेहयाई का जिसको दिन कहा जाता है ना, मनाना सही भी नहीं है और ये हमारे तसव्वुर के बाहर है इस्लामी दिन। अब उसके बदल में काव हग डे बनाया गया है, यानी कि जब 14 फरवरी आएगा तो आपको गायों से मुआनका करना पड़ेगा या उसको चूमना पड़ेगा। ये सरकारी फरमान है। गर्लफ्रेंड, बीवी, दोस्त, बहन, भाई, वालिदैन को गले लगाने के बजाय गाय को गले लगाए, ये मानना है उन लोगों का 14 फरवरी को। अब इस पर लतीफे भी बन रहे हैं, तनकीद भी आ रही है। अब दलित की गाय को गाय नहीं माना जा रहा है और यहां है कि गाय को गले लगाने का सरकारी फरमान भी आ गया है। सत्या की रिपोर्ट है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की है और तुर्की के अवाम वाकई में तुर्की के अवाम है। पहले तो मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने तुर्की से आई हुई रखूंगा, जहां पर एक ट्रक मुतासिरा इलाके तक पहुंचने के लिए नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है कि वो इमदादी सामान लेकर के आ रही थी। जब पता चला कि ट्रक अंदर नहीं घुस पा रही है तो पूरा का पूरा मोहल्ला नीचे आया और कई किलोमीटर दूर तक आवाम ने ऐसा कतार बनाया कि जो है पल भर के अंदर ट्रक पर सवार पूरा सामान खाली करवा दिया गया। तो ये मदद करने की, इमदाद फराहम करने की वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ जहां शेयर हुई, वही नाज़रीन गिरामी रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त जो है लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को दिलासा दे रहे हैं। जो भी हुआ अल्लाह की मर्जी से था, जो गया है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिसका घर तबाह हो गया हम उनको एक लीरा यानी तुर्की की करेंसी खर्च किए बगैर एक ऐसा अच्छा घर बना के देंगे, उनको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी, कहते हुए दिलासा दे रहे हैं। और 10 दरख्त भी उनके घर के सामने लगाए जाएंगे, ये कहते हुए वो ख़वातीन को, मुतासिरीन को जहाँ पर दिलासा दे रहे हैं, जगह जगह जा कर के अज़बख़ुद उनसे मुलाकात करने की अलग अलग तस्वीरें रजब तैयब एर्दोगान की इस वक्त जो है पूरी तरह से फैल रही। इसी दरमियान में नाज़रीन गिरामी तुर्क फ़ौज की एक और वीडियो हमारे सामने आई कि किस तरह वो खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जाहिर सी बात है कि लाखों लोग जो है इस वक्त कैंप में रहने पर मजबूर हैं और बार बार जो है ये ज़लज़ले के छोटे छोटे झटके महसूस होने की वजह से मुतासिरा इलाकों में जो बिल्डिंगें अभी हैं वहाँ भी लोग नहीं रह रहे हैं। जिनकी बची हुई बिल्डिंगें हैं वो भी जो है किसी स्कूल या खाली मैदान में रहने पर मजबूर हैं। जाहिर सी बात है कि लाखों की तादाद में जो इस वक्त कैंप में रहने पर मजबूर हैं, उन लोगों तक खाने पीने का भी इंतज़ाम करवाना है। तो तुर्क की फ़ौज पूरी तरह से जो है इसमें अपना पूरी तरह से ताउन। आज जब भारत के पीएम मोदी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में और नौजवानों की नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे, तो उसी वक्त उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत की जानिब से जो बेरोजगार नौजवान अपने मुतालबात रख रहे थे उनको लाठी डंडे खाने पड़ रहे थे। एक तरफ पार्लियामेंट में
ऐवान में पीएम मोदी का नौकरियों और रोजगार को लेकर के जानकारी, और दूसरी जानिब उसी की हुकूमत के पुलिस और वहाँ की इंतजामिया की जानिब से बेरोजगार नौजवानों पर लाठी चार्ज और लाठी के डंडे। ये क्या कहानी है ज़मीनी सतह पर, और पार्लियामेंट में कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कितना फ़र्क और अंतर होता है इन तमाम चीज़ों में, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और वो है समंदर में तैरती हुई $300 मिलियन मालियत की कोकीन पकड़ी गई है, यानी कि ड्रग्स, नशावर चीज़ें। न्यूजीलैंड की तारीख में अब तक मिलने वाली सबसे बड़ी मिकदार में कोकीन की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत $300 मिलियन बनती है। ये कोकेन बहरुल काहिल के पानी में तैरती हुई मिली है। न्यूजीलैंड की पुलिस की तरफ से जारी होने वाले बयान के मुताबिक उन्होंने 3.5 टन कोकेन कब्जे मिली है, जो न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होने वाले कोकेन की ज़रूरत 30 बरस तक पूरी कर सकती है। यानी 30 बरस तक खाई और पी जाने वाली इतनी बड़ी मिकदार में तादाद में जो है ड्रग्स मिला है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आप भी देखे होंगे, और वो है कि किस तरह दुश्मनियां निकाली जाती हैं। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, जिसमें बीजेपी लीडरान और वज़रा हिस्सा ले रहे हैं। अशोकनगर में विकास यात्रा के दौरान इस्तकबालिया में वजीर ब्रजेंद्र सिंह यादव के ऊपर किसी ने क्रेच के बीज या फलियां डाल दी, जो खुजली पैदा करती हैं और खारिश पैदा करती है। फिर क्या था, वजीर के जिस्म में खारिश शुरू हो गई। वजीर की खारिश इतनी बढ़ गई कि उन्हें गांव में नहाना पड़ा और यात्रा के दौरान ही कपड़े बदलने पड़े, फिर कहीं जाकर उन्हें खारिश से नजात मिली। बताया जा रहा है कि मामला मोंगा वाली असेंबली के देवरछी गांव का है। वजीर यहां अवामी राब्ता कर रहे थे। इस दौरान कुछ शरारती अनासिर ने क्रेज की फलियों का पाउडर या बीज उन पर लगा दिया, जिससे खारिश हो गई। इस वाक़े की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें वजीर ब्रजेंद्र सिंह खुजली के बाद गाँव में रात को नहाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वजीर कहते हुए नजर आए कि किसी ने क्रेच लगा दिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दुश्मनी निकालने का ये भी एक तरीक़ा होता है, और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी लीडरान इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया में मजाक बन जाते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।